Welcome to We Learn. This is session number 1 of data warehousing and data mining. Today we are going to cover different topics like introduction to data warehouse, what is a data warehouse, need for data warehousing, characteristics of data warehouse, OLTP versus OLAP, how OLAP supports in decision making, data mart, and at last data mining. Now let us cover one by one. The first one was introduction to data warehouse. Data warehouse क्या होता है? Now let us start from this part. A data warehouse is what basically it is the collection of subject oriented, integrated, time variant and non volatile collection of data. डेटा वेयर हाउस के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कलेक्टिव डेटा होता है, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके डेटा को इकट्ठा किया जाता है इस डेटा वेयर हाउस के अंदर। और जो डेटा हम डेटा वेयर हाउस से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर एक टाइम वैल्यू होती है और ये डेटा बार बार चेंज नहीं होता है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ डेटा बेसिकली हेल्प्स इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. When we talk about the data warehouse, so our data warehouse is also a collection of the key pieces of information. Key pieces in the sense that is the important information within the organization. वो information जो कि manage की जाती है और direct की जाती है just to generate the profitability from the business, so that किसी भी business की outcome एक profitable manner में निकाली जा सके. वो important piece of data हम किसके अंदर store करते हैं? data warehouse के अंदर. It is also the process involved in getting that data from the sources to the table and in getting that table data from table to the analyst. इसके अलावा हम इस डेटा वेयरहाउसिंग में उन प्रोसेस को भी इन्वॉल्व करते हैं जिसमें डेटा जो कि डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है और एक पर्टिकुलर टेबल तक पहुंचाया गया है और उस टेबल से डेटा अल्टीमेटली किसके हाथों में जाता है? इन द हैंड्स ऑफ एनालिस्ट, जो एक्चुअल वे में एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं पास्ट डेटा की विद दैट ऑफ द प्रेजेंट डेटा, so that the things can be predicted, future data can be generated और उसी future data को हम एक profitable outcome की form में materialize कर सकें. A data warehouse is also the data, it is a collection of data as well as process. और जब हम बात करते हैं डेटा की तो डेटा could be in the form of meta data, it could be fact data, dimensional data, aggregation data. एंड जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इट मीन्स वी हैव टू लोड द डेटा, वी हैव टू अप्लाई वेयर हाउसिंग ओवर दैट डेटा, क्वेरी अप्लाई करना जस्ट टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल सो दैट पीपल कैन मेक और डिसीजन मेकर्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. आई हैव यूज द वर्ड नॉट ओनली द डिसीजन, रादर आई हैव यूज द वर्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन. It means whatever decision it's coming out of the data from that we have extracted from the data warehouse, it is giving you a certain output. That is why the decision is said to be the informed decision, confirmed decision rather. Now data warehousing includes what basically? जब हम डेटा warehousing की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्राइम एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है, जैसे कि फर्स्ट वन है बिल्ड द डेटा वेयरहाउस. Data warehousing includes the building up of the data warehouse. Another is called as a online analysis processing, that is OLAP. And at last it is the data warehousing includes the presentation part. Whatever data you have stored into the data warehouse, it is to be presented in a well defined manner. So data warehouse include all these three important activities, that is build the data warehouse, OLAP and the last presentation. Now another question that always coming in your mind is what is the need of developing data warehouse? Because until and unless we don't have any need, we are not get motivated to do that task. So the answer to this question is that what is the need of data warehousing is that every industry, every firm, every organization has huge amount of operational data. And that operational data is being used or turned up or transformed by knowledge worker into the useful information. Knowledge worker in the sense that worker who has performed in-depth analysis over the data and is able to take on decision.
तो नॉलेज वर्कर जो है ऑपरेशनल डेटा को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजफुल फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन में। और ये यूजफुल फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द डिसीजन मेकर्स टू टेक ऑन द स्ट्रैटेजिक काइंड ऑफ डिसीजन। यानी कि किसी भी कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारे उस डेटा का यूज़ होता है जो कि हम डेटा वेयरहाउसिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं। Another important parameter regarding the need for data warehousing is that data warehousing it provides you basically a platform. किस चीज़ का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेटा वेयरहाउसिंग? फॉर कंसोलिडेटेड द हिस्टोरिकल डेटा। जब सारा डेटा हिस्टोरिकल काइंड ऑफ डेटा एक जगह पर इकट्ठा होता है तो इट हेल्प्स द एनालिस्ट टू कैरी आउट द एनालिसिस ओवर दैट अवेलेबल डेटा। सो डेटा वेयरहाउस इज द सिंगल प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन अप्लाई सच सॉर्ट ऑफ एनालिसिस. It stores. Data warehousing also stores the data of good quality. Good quality in the sense so that the knowledge worker can make correct decision. Good quality decision always corresponds to the correct decision. आज currently कुछ 2012 में लिया हुआ डेटा नियर फ्यूचर में 2013 में 14 में या 15 में गलत ना हो जाए, इसके रिगार्डिंग हम जो हमारा जो बेस होता है वो होता है हमारा डेटा. And that data, if it is of good quality, then the decision whether it's 2015 or 20, the decision will be correct at all level, right? From business perspective, data warehousing it is the latest marketing weapon. It helps to keep customer by learning more about their needs, right? Customer को हम अच्छे से समझ पाते हैं by understanding their basic needs, right? Valuable tool in today's competitive fast evolving world. So data warehousing is considered not only as a quality tool or rather marketing tool, rather it is acting as a valuable tool also. जो डेटा हम डेटा वेयरहाउसिंग से निकालते हैं, क्योंकि हमारा डेटा वेयरहाउस अल्टीमेटली कौन सा डेटा स्टोर करता है? हिस्टोरिकल काइंड ऑफ डेटा, हिस्ट्री का डेटा, पास्ट का डेटा, पास्ट के डेटा प्लस करंट के डेटा के बेसिस पे वी आर एबल टू परफॉर्म द प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर. सो दैट इज वाई अ डेटा वेयरहाउसिंग इज कंसिडर्ड एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग वेपन. अनदर थिंग इज दैट it is also called as a valuable tool. Valuable tool in the sense that is it in this competitive world where the cutthroat competition is going on in a day-to-day basis, वहाँ पर हमारे इस टाइप के मार्केटिंग वेपन टूल्स ही यूज़फुल होते हैं सो दैट हम एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपने डेटा वेयरहाउस में से एक्सट्रैक्ट करके अपने कंपटीटर्स को बाईपास कर पाते हैं, राइट? Now, suppose you are being appointed as a data warehouse manager in any company, then what sort of characteristic you have to maintain while building up the data warehouse? तो आपको डेटा वेयरहाउस बनाते समय कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर का ध्यान रखना है? द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड. सब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स द डेटा वेयरहाउस विल स्टोर्स द डेटा ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट. और जैसे हम रिलेटेड सब्जेक्ट की बात करते हैं, इट मीन्स लाइक सेल्स डेटा, प्रोडक्ट डेटा, कस्टमर डेटा. इट फोकस ऑन मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा फॉर द डिसीजन मेकर. जब हम बात करते हैं मॉडलिंग की, इट मीन्स जस्ट टू गेट द रियलिस्टिक काइंड ऑफ डेटा, एग्जैक्ट डेटा, करेक्ट डेटा, वी हैव टू अप्लाई लॉट्स ऑफ एनालिसिस ओवर द डेटा. एंड दिस एनालिसिस ऑफ डेटा, सो जस्ट टू गेट द रियलिस्टिक काइंड ऑफ डेटा, इट इज फोकस्ड बाय द डिसीजन मेकर. Apart from this, data warehousing excludes data that is not useful in the decision support process. तो ये जो सारा काम हम करते हैं ये कौन से पैरामीटर के अंदर करते हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर करते हैं डेटा वेयरहाउस के? दैट इज द सब्जेक्ट ओरिएंटेड. मीन्स अनवांटेड डेटा को डिलीट कीजिए, मॉडलिंग अप्लाई कीजिए, एनालिसिस कीजिए और सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा को डेटा वेयरहाउसिंग में स्टोर कीजिए. This thing comes under the subject oriented. Another characteristic feature of the data warehouse is integration. We have already covered this part that data warehouse is the only platform where the data is collected from different sources and it is consolidated at a single place. So data warehouse is constructed by the integrated multiple heterogeneous sources. Different sources से data collect होके एक ही जगह पर store होता है, वो है data warehouse.
और यहाँ पर उसी डेटा के ऊपर हम प्री प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। और प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करने की इंटेंशंस क्या है? जस्ट टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी, हम डेटा की यूनिफॉर्मिटी और एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकें, इसीलिए हमें डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करनी होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज अबाउट द इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ डेटा मीन्स एनकोडिंग द स्ट्रक्चर्स, मेजरमेंट ऑफ द एट्रीब्यूट, जो भी डेटा हमारा इसमें स्टोर होता है उसकी एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा नेमिंग कन्वेंशंस एंड डेटा टाइप फॉर्मेट। एक पर्टिकुलर कन्वेंशंस को भी हम यूज़ करते हैं in the integration of data inside the data warehouse. So in nutshell we will say that operational data, जो रूटीन डेटा होता है किसी भी कंपनी का, डे टू डे ट्रांजेक्शन का डेटा होता है, उसको कलेक्टिवली इंटीग्रेट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म में डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, राइट। Another important parameter regarding the characteristic of data warehouses, it provides the information from the historical perspective, is that past 5 to 10 years data. हिस्टोरिकल डेटा की जब हम बात करते हैं तो डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है इट कुड बी अबाउट 5 to 10 years बैक। एवरी की स्ट्रक्चर कंटेन्स ईदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेटा एलिमेंट। नॉन वॉलेटाइल, जब हम कहते हैं हमारा डेटा वेयरहाउस नॉन वॉलेटाइल है, इट मीन्स डेटा वंस रिकॉर्डेड कैन नॉट बी अपडेटेड। डेटा वेयरहाउस रिक्वायर्स टू ऑपरेशन इन एक्सेसिंग द डेटा। जब आप एक डेटा वेयरहाउस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसमें दो काइंड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियल लोडिंग ऑफ द डेटा, जिसमें हम सारे डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से जो हमने कलेक्ट किया है उसको अपने डेटा वेयरहाउस में लोड कर देते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इन दैट इज द रिक्वायर्ड इन द एक्सेसिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटा वेयरहाउस इज एक्सेस ऑफ द डेटा। पहला स्टेप लोडिंग ऑफ द डेटा, नेक्स्ट वन एक्सेस ऑफ द डेटा, राइट। So these were the four parameters or 4 characteristics of the data warehouse. So you have to keep these four parameters in your mind while generating the or building the data warehouse. Next one is OLTP and OLAP को आपने कंपेयर करना है। OLTP को हम ऑपरेशनल डेटा भी बोलते हैं और OLAP हमारी एक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में होती है। So OLTP, its characteristic feature is that it is involved in the operational processing, while OLAPs, it is concerned with the information processing. OLTP means transaction oriented processes are carried out, while in OLAP, analysis kind of processing is carried out. OLTP kind of operation can be performed by some clerk, DBA, database professional and all these. But the users of the OLAP are knowledge workers. The basic function of OLTP is day-to-day operations, while the basic function of OLAP is decision support system. Data. In OLTP, the data that is used for processing is current data, while in the data that is used in OLAP kind of processing is the historical kind of data. In terms of view, OLT provides detailed flat relational view, while OLAP provides summarized and multi-dimensional view of the data. Means the same data can be viewed in a different perspective. In terms of database size or database design, OLTP is application oriented, while OLAP is subject oriented. Unit of work, OLTP में जितने भी transactions होते हैं they all are of kind of simple transaction, while in OLAP we are responsible for processing the complex queries. Access, OLTP में जो हमारा access mechanism होता है OLTP kind of data का, that is read and write only, while in OLAP because it stores the historical kind of data, so that is not allowed to be changed because this is one of the most characteristic feature of the OL data warehouse कि वो बार बार आपको डेटा चेंज करने की परमिशन नहीं देता है। तो मोस्टली जो OLAP में डेटा स्टोर होता है दैट इज ऑफ रीडेबल फॉर्मेट। व्हेन वी टर्म इन टर्म्स ऑफ फोकस देन OLTP स्टोर्स डेटा। इसका फोकस डेटा को इन करने में होता है, इनपुट ऑफ डेटा में, while OLAP is concerned with the output generation of the information. The number of records that are accessed in OLTP are tens,
while in OLAP it is millions. Number of users, when we talk about the number of users in OLTP, then thousands of users can operate the OLTP, like in railway department. But when we talk about the OLEP, the number of users are just hundreds. Database size ranges from 100 megabyte to gigabyte in OLTP, while in OLAP its range is from 100 gigabyte to terabyte. When we talk about the priority, then OLTP has high priority in terms of performance and in terms of availability of the data, while in OLAP high flexibility and end user autonomy is ensured, right? So OLTP is basically concerned with the transactional processing, while OLAP is concerned with the query throughput, right? So this is the major differences between OLTP and OLAP. In nutshell हम कह सकते हैं OLTP हमारा प्रेजेंट डेटा को के ऊपर ऑपरेशन सप्लाई करता है, एंड OLAP जो है हमारे पास्ट के डेटा के ऊपर. Now we have gone through with the various features of the OLAP as well as OLTP, and now we are coming at the conclusion that how OLAP supports in decision making. Now OLAP tools support multi-dimensional analysis and decision making. Multi-dimensional analysis. Additional data analysis tools are required for in-depth analysis such as data classification, clustering and characterization of the data that changes over the time. तो हमारा वो डेटा जो OLAP टूल्स हेल्प करते हैं डिसीजन मेकर की किस काम में, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस में, डिसीजन मेकिंग में, एडिशनल डेटा एनालिसिस में, किस काम के लिए, फॉर इन डेप्थ एनालिसिस के लिए. और इन डेप्थ एनालिसिस क्या इंक्लूड करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, क्लस्टरिंग ऑफ द डेटा एंड फ्यूचर चेंजेस ऑफ द डेटा, जो कि बार बार हमारा चेंज होता रहता है. अपार्ट फ्रॉम दिस OLAP और कैसे डिसीजन मेकर्स की हेल्प करता है. डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, लाइक एनालिस्ट, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स हु रिक्वायर्स अ इनसाइट इनटू द डेटा, जिनको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द डेटा मस्ट बी क्लियर. और डेटा वेयरहाउसिंग हमें with the help of OLAP provides fast, consistent, interactive access to a wide variety of possible views of the information. OLAP की हेल्प से हमारे जो मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, एनालिस्ट हैं, जिन्होंने फाइनली डिसीजन लेना है, वो एक ही पीस ऑफ डेटा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं, डिफरेंट डायमेंशन से मेजर कर पाते हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टूड, दे शुड बी अंडरस्टूड बाय द यूज़र. डेटा वेयरहाउसिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, जब हम बात करते हैं डेटा वेयरहाउसिंग टेक्नोलॉजी की, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, दैट इज़ क्लीनिंग ऑफ द डेटा, इंटीग्रेशन ऑफ द डेटा एंड OLAP, दैट इज़ एनालिसिस टेक्निक. OLAP इज़ व्हाट बेसिकली, इट्स अ एनालिसिस टेक्निक with functionalities such as summarization, consolidation and aggregation, as well as the ability to view the information from different angles. One of the most and beautiful feature of OLAP is that the analysis can be done by lots of functionalities like summarization कर सकते हैं आप, consolidation कर सकते हैं आप, aggregation कर सकते हैं, सारे डेटा का एक कलेक्टिव ग्रुप व्यू निकाला जा सकता है, और उसी एंगल को आप, उसी डेटा को आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं. Now another important term that we use in the data warehousing and mining is data mart. What is data mart? Data mart is basically the subset of information, content of a data warehouse that is stored in its own database, summarized or in detail. Means कहने का मतलब क्या है, वो डेटा जो डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है उसको हम डिफरेंट सबसेट में डिवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा मार्ट. And each data mart basically stores the content of data warehouse. In other terms we can say that बहुत सारे data marts मिलकर हमारे क्या create करते हैं, एक data warehouse. It means data warehouse is the collection of data mart, right? So the data in the data mart may or may not be sourced from an enterprise's data warehouse, right? Data mart share a number of attribute and design issue. वो डेटा मार्ट जो कि एक पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस के पार्ट हैं, तो डिफरेंट डेटा मार्ट जो एक पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस के पार्ट्स हैं, वो कुछ एट्रीब्यूट्स एंड डिज़ाइन इश्यूज़ को आपस में शेयर करते हैं, राइट?
तो डेटा मार्ट्स कम इन मैनी शेप्स एंड साइज। ऐसा नहीं है कि अगर एक डेटा मार्ट का साइज़ 1 GB है तो सभी का 1 GB होगा। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। कोई कुछ बाइट्स का हो सकता है, कोई 2 GB का भी हो सकता है, कोई 1024 बाइट्स का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। इट कैन इम्प्रूव क्वेरी प्रोसेसिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग द डेटा मार्ट इज दैट कि डेटा मार्ट क्रिएट करने से क्वेरी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो जाती है। कैसे इम्प्रूव हो जाती है? नाउ थिंक ओवर दिस एरिया। अगर मेरा डेटा वेयरहाउस का साइज 5 GB है और एक पर्टिकुलर क्वेरी करनी है, एक पर्टिकुलर क्वेरी में से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड सर्च करना है, सपोज राहुल इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, जिसका रिकॉर्ड मुझे 5 GB डेटा वेयरहाउस में से सर्च करना है। तो अब इस इतने बड़े डेटा वेयरहाउस में सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना एक काम करें, पहले डेटा वेयरहाउस में से एक पर्टिकुलर डेटा मार्ट निकालते हैं नेम नाम का, और सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा मार्ट में सर्चिंग अप्लाई करते हैं राहुल नाम को सर्च करने के लिए। तो हमारी जो क्वेरी है उसकी प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। इट मीन्स क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। और जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने पहले ही डेटा मार्ट की फॉर्म में डेटा वेयरहाउस में से डेटा निकाल लिया है। सो अल्टीमेटली डेटा मार्ट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द क्वेरी परफॉर्मेंस। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द डेटा so that the needs to be satisfied a query. Marts are created along the functional and department lines. मार्ट्स जो बनाए जाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं? फंक्शनैलिटी के बेसिस पे और कुछ डिपार्टमेंट लाइंस के बेसिस पे। नाउ अनदर हॉट टॉपिक ऑफ द डेटा वेयरहाउसिंग इज डेटा माइनिंग। व्हाट इज डेटा माइनिंग? इट रेफर्स टू द एक्सट्रैक्टिंग और माइनिंग नॉलेज फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस और माइनिंग जो आप अप्लाई करते हैं, जो भी डिगिंग ऑफ ऑपरेशंस आप करते हैं उस डेटा के ऊपर जो कि डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर है, सो दैट एंटायर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज अ डेटा माइनिंग। सपोज करो मेरे पास कस्टमर का एक डेटा वेयरहाउस है और मुझे सिर्फ उन्हीं कस्टमर का डेटा चाहिए जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं। तो अब हम कुछ क्वेरी ऐसे लिखेंगे, अगर हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली। तो सिर्फ वही कस्टमर के रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं। तो ये जो क्वेरी मैंने लिखी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा माइनिंग, क्योंकि एक बहुत बड़े डेटा वेयरहाउस में से मैंने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये जितने भी प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन और माइनिंग मैंने अप्लाई किया है, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनिंग ऑफ डेटा। डेटा माइनिंग को हम एक और नाम से पॉपुलरली जानते हैं, दैट इज नॉलेज एक्सट्रैक्शन, और एक और नाम भी है दैट इज नॉलेज माइनिंग। दैट इज यूज फॉर द डेटा और पैटर्न एनालिसिस और डेटा आर्कियोलॉजी, राइट। सो नॉलेज डिस्कवरी इज ऑल्सो इज द सिनोनिम फॉर डेटा माइनिंग। Data warehousing provides information which helps in the lighting so that it provides strength to the knowledge worker. डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर जो डेटा स्टोर्ड होता है उसको हमारे नॉलेज वर्कर निकालते हैं और उसकी लाइटिंग में या उसकी सपोर्ट से वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग अप्लाई करते हैं। और वो डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेंथ का काम कौन करता है? हमारा डेटा माइनिंग प्रोसेस। So that information provided by the data warehouse will act as a tool for the people who are using it. So basic thing of data mining is that it helps the knowledge worker in supporting their and in providing the strength to their decision, right? So at last let us take a revision to that what we have covered in today's session, that is क्या क्या कवर किया हमने। डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है, डेटा वेयरहाउस क्या होता है। डेटा वेयरहाउसिंग इज़ ए काइंड ऑफ प्रोसेस एंड डेटा वेयरहाउस उस डेटा को बोलते हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली जाके स्टोर होता है। इसके अलावा हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक डेटा वेयरहाउस के होने चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव कवर्ड द एक क्लासिफिकेशन डिफरेंस बिटवीन द OLTP as well as OLAP. Apart from this, we have covered the another important term that we use in the data warehousing, that was data mart, and the last one was data mining. I hope you are able to get the concept that we have covered today. So now it's the turn to
provide you the homework or do it yourself exercise. First question that I am going to provide you is, what is the OLAP? You have to write the 10 points for the same. Next one is, write brief note on data mining, because data mining plays a very prominent role in the data warehousing. So you have to write brief note, just crispy points आपको बनाने हैं इसके regarding, and that point should be 10 in numbers, right? With this we are going to finish this session. Thank you.